Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more question on ratio analysis, that is an accounting ratio, and there will be at end of this one question, we will give you a challenge question, and it is an advice to solve these challenge questions. So let's see what the given information in this question. You are required to prepare the balance sheet of some change which we have covered since far. तो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियो का एक और न्यूमेरिकल। एक स्टूडेंट का रिव्यू मिला, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इन सब इनिशिएटिव का बेनिफिट्स लेते हैं। उन स्टूडेंट ने ये बोला कि मैम जब आपका ये सेशन स्टार्ट होता है तो उस वक्त मैं डिसिप्लिन होकर बैठ जाता हूँ और आपके क्वेश्चन के देने के बाद ही आपके सॉल्यूशन से पहले मेरी कोशिश रहती है कि अंडर प्रेशर में रह के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ले सकते हैं और चैलेंज क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। ठीक है, तो वो बेटर है कि आप संग में कर लें, चैलेंज में कर लें और विद इन स्पीड एंड प्रेशर में कर लेंगे तो वो उतनी ही जल्दी और टाइम फ्रेम और डिसिप्लिन अप्रोच में कवर अप हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो एस्पिरेंट ने ऑप्ट की काफ़ी अच्छी लगी, आप भी इन सब का बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए मैंने आज आप सबको शेयर किया है कि ऐसे आप इन सेशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन में आपको रेशियो एनालिसिस में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ इज 0.8:1, करंट रेशियो इज 3:1, फिक्स्ड एसेट इज रुपीज 8 lakh, reserves which is included in proprietors fund 25%, asset test ratio 3:2, and we have cash and bank balance rupees 15,000 and we are also missing with the long term loan. तो हमें लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं गिवन है, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए फटाफट से हम कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ। मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्लो चलूंगी ताकि आप इस चैलेंज में मुझसे आगे निकलें एंड आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। तो मेन क्वेश्चन की जो डिमांड है वो बैलेंस शीट है, तो वर्किंग हम हमेशा बाद में करते हैं, या अगर आपके बुकलेट्स में लेफ्ट एंड राइट पेज है तो एक पेज पे हम वर्किंग करते हैं और दूसरे पेज पे हम मेन आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में, तो हम फिक्स्ड एसेट्स को पुट कर देंगे 8 लाख रुपीज। सो वी हैव ओनली फिक्स्ड एसेट्स इन आवर गिवन डिटेल 8 lakh rupees. We put that and then we go with the notes. So our first ratio is fixed assets to net worth 0.8. Fixed assets to net worth, that is 0.8:1, and we have fixed asset of 8 lakh. Fixed assets to net worth, I am writing shortcut, please avoid for the purpose of examination, and we have 0.8. So we get net worth of rupees straight away 10 lakh. Okay, so we have a net worth of rupees 10 lakh. Okay, let's see the next information. We have okay, current ratio. We have also a cash and bank balance rupees 15,000, if you can see. Current assets, cash and bank rupees 15,000. Okay, so net worth is rupees we got a 10,000. Okay, and we have a cash bank of rupees 15,000. Okay, now switch to the next your formula, because we have a net worth of rupees 10 lakh. Okay, and we have a fixed assets of 8 lakh, if you can see. That means we have a working capital of rupees 2 lakh, if you can calculate and you can see that. Okay, so you can write that
There is no formula for this. You have to just use your strategy for the purpose of balance sheet you learned so far. So net worth is rupees 10 lakh. Your fixed asset and plus your net working capital is rupees 10 lakh. Okay, your working capital is 10 lakh plus fixed lakh. So we have a fixed asset of 8 lakh. We are missing working capital and we have a net worth of 10 lakh. So we can get the working capital of say 2 lakh. Yes. 1 second please. Okay. We get working capital of rupees 2 lakh. I hope this is clear. Because लेट्स कंक्लूड इन दी अदर लैंग्वेज. आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट है, आपका फिक्स्ड जो पोर्शन है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी. अगर आपने बैलेंस शीट को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मैं बैलेंस शीट को यहाँ पे एक्सट्रीमली नहीं एक्सप्लेन करने जाऊंगी, तो फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल के पोर्शन को मिलाकर आपकी नेट वर्थ बनती है. तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट गिवन था, हमारी नेट वर्थ निकल चुकी है, तो डिफरेंस फिगर हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ठीक है. सो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गया 2 लाख रुपीज. We have current ratio 3:1. Current ratio 3:1. यानी आपका करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो. सो वी कैन से दैट 3x by 1x इज इक्वल्स टू करंट रेशियो. मीन्स आपका जो करंट एसेट है वो 3 टाइम है और करंट लाइबिलिटी 1 टाइम है एज कंपेयर टू द करंट रेशियो. मीन्स सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, करंट एसेट पर करंट लाइबिलिटी होता है. इट्स योर वर्किंग कैपिटल. और सॉरी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. We have 2 lakh and this is our 3x. So x will be 1 lakh. So we can take it. Current liabilities is 1 lakh and current asset is 3 lakh. Hope it's okay. Let's conclude in other language. तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल आपका निकल के आ चुका है 2 लाख रुपए. ठीक है. तो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट का जो है हमें कोई डाटा नहीं गिवन है, तो हम रेशियो के बेसिस पे लेंगे. 3:1 दिया हुआ है, तो हमने करंट एसेट को 3x एंड करंट लाइबिलिटी को 1x माना है. ठीक है. यानी फिगर्स की जगह जो नंबर्स हैं उसकी जगह हमने x वेरिएबल ले लिया है कि भाई हमारा जो एसेट होगा ना वो लाइबिलिटी का 3 गुना है. ठीक है. और इस स्टैटिस्टिकल टूल से हमने वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को किया और हमारे एक्स की वैल्यू आ गई. अब ये जो एक्स है हमारा करंट लाइबिलिटी हो जाता है और उसका 3 गुना हमारा करंट एसेट यानी 3x यानी 3 into 1 लाख, हमारा 3 लाख जो है हमारा करंट एसेट हो जाता है. आई होप ये क्लियर हो चुका हो आपको. कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, उसको कोशिश करना है कि आप उसे अंडरस्टैंड करें. अब करंट एसेट हमें 3 लाख मिल चुका है, यानी ये जो है कैश बैंक और आपका मिला करके ये आपका 3 लाख है. तो अगर हम करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट करें तो हमें टोटल एसेट्स मिल जाएगा 3 लाख प्लस 8 लाख. वी हैव 11 लाख. ओके, here we are going to have a 11 lakh. Same this will 11 lakh. Hope it's okay. Okay. Next ratio क्या given है? एसेट टेस्ट रेशियो इज 3:2. ये हमें बस स्टॉक के लिए हेल्प करेगा एसेट टेस्ट रेशियो. तो पहले हम एसेट टेस्ट रेशियो को देख लेते हैं. आप कोई भी सीक्वेंस ऑप्ट कर सकते हैं. देयर इज नो रूल ऑफ थंब. इफ आई एम डूइंग एसेट टेस्ट रेशियो फर्स्ट और इफ आई एम डूइंग एनी अदर रेशियो फर्स्ट, यू कैन डू एनीथिंग. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर दैट यू हैव टू गो विद दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली. ओके. Asset test ratio. So for the asset test ratio we have liquid assets by current liability. I'm writing shortcut, or you can also use the word current assets
minus stock by current liability, right? Current assets we found is 3 lakh. We don't know the figure of stock, so we are using the variable X. Okay, we have current liability of 1 lakh and asset test ratio is 3:2. 3:2. Please solve this. You can get X is equal to 1,50,000 and your stock value is 1,50,000 straight away. So here the stock is 1,50,000 and we can take other current assets, the difference one, because we have already 11 lakh as a value. So it will be 1,35,000 straight away. No problem here, everything is done. Okay. Current liability we can put there 1 lakh. I'm writing shortcut, please avoid that again. Okay, current liability 1 lakh. Okay, now what the question is saying, what is missing? We already use the fixed asset, we use the current ratio, we use this information, we use. Now list is reserve included in the proprietor's fund is 25%. That means the proprietor's fund we got is 10 lakh. Okay, so what is the percentage? It's a 25%. So reserve will be 2,50,000. Reserve will be 2,50,000. Then the balance will be share capital 7,50,000. Okay, 7,50,000. So what about the long-term loans? So it can be brought forward because it's nothing is missing and we have all the information and everything is equalized. Hope you can see this in detail, that how the examiner can play with your mind if you are not alert with dealing with these situations and if you lag with this 10 lakhs, because most of the time student what think this will be the net amount, and here is the main point that student lack here. Let's conclude in the other language. तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी हम क्विकली एक बार देख लेते हैं. हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था और ये गिवन डिटेल्स है हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ यानी हमने न्यूमरेटर में फिक्स्ड एसेट रखना है, डिनोमिनेटर में नेटवर्थ 0.8:1. ठीक है, सो 0.8:1 में हमारे पास फिक्स्ड एसेट दी हुई है 8 लाख रुपीस की. ठीक है, और 0.8 टू नेटवर्थ हमारी आ जाती है 10 लाख रुपए की स्ट्रेट अवे. फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल मिलाकर के हमारी नेटवर्थ के बराबर होता है. ठीक है, तो इससे हमारे पास फिक्स्ड एसेट गिवन है, हमारे पास नेटवर्थ हमने 10 लाख निकाल ली, तो वर्किंग कैपिटल हमारा डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस फिगर आ जाता है 2 लाख रुपए का. क्लियर है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. अब हमारे पास करंट रेशियो गिवन है 3:1. ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, यानी हमारा जो करंट एसेट है वो 3 गुना है. तो हमने 3x:2x 1x हमारा, और वर्किंग कैपिटल था हमारा 2 लाख रुपए. तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस, और इससे हम कैलकुलेट करके आपकी करंट जो लाइबिलिटीज हैं और करंट एसेट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो करंट लाइबिलिटीज आपकी जो आती हैं वो है 1 लाख और करंट एसेट की वैल्यू आ जाती है आपकी 3 लाख विद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू. एसेट टेस्ट रेशियो की मदद से हम स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं. इसमें सिर्फ स्टॉक को डिफरेंशिएट करता है और बाकी जो डिफरेंस बचता है उससे हम अदर एसेट्स को जो है डेजिग्नेट कर सकते हैं. उसके बाद क्या रिजर्व जो बोला है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि प्रोप्राइटर का जो फंड है ना, शेयर होल्डर्स का जो प्रोप्राइटर फंड है उसमें 25% योग रिजर्व का है, रिजर्व पोर्शन का है. यानी जो आपका 10 लाख अमाउंट है उसका 25% वेटेज रिजर्व्स का है. तो 25% वेटेज हमने रिजर्व को दे दिया और बाकी 7,50,000 आपका जो है शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया. इससे हमने देखा हमारी बैलेंस शीट जो है टैली हो गई. अब जो बात आती है कैच कि ये लॉन्ग टर्म लोन कहाँ है, लॉन्ग टर्म लोन की बात क्या है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया एग्जामिनर ने, सो इसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट आवर बैलेंस शीट इज ऑलरेडी मैच एंड इट माइट बी अ ट्रैप ऑफ एन एग्जामिनेशन. ठीक है, सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर एंड आई होप एंड आई प्रोबेबली बिलीव कि आपने इससे मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा. एंड आई फील ओके
कि आप इसे मुझसे पहले ही सॉल्व करें। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी, अकाउंटिंग रेशियोज़ में कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद यही करना है। जो आपको फिजिबल लगे आप उस मोड को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैलेंज क्वेश्चन। Okay, so please write down the challenge question. So you are required to prepare balance sheet. Okay, so let's take equity shares of rupees say 10 each. Liquid ratio 1.5. Current ratio 2.5. Asset which is marked as a fixed. Proprietorship fund ratio 0.75. Okay, I hope it's visible. Working capital, this time I'm switching the material. Working capital rupees 1,20,000. Reserve and surplus rupees 60,000 and bank loan rupees 20,000, and you are required to prepare the balance sheet. This is a challenge question. Okay, ठीक है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इक्विटी शेयर गिवन होगा, आप में ये मान के चलेंगे जो भी इक्विटी शेयर आएगा वो 10 रुपये के हिसाब से होगा। लिक्विड रेशियो है 1.5, करंट रेशियो है 2.5, एसेट फिक्स्ड प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो है 0.75, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 एंड बैंक लोन है आपका 20,000. So this is all about your challenge question. And before going ahead, a further important point I want to keep in your mind कि अकाउंटिंग रेशियो में सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आपकी फॉर्मूला कैच बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल की कोई लिमिट्स नहीं है और आप ये भी नहीं कह सकते कि जो आपने प्रैक्टिस किया वो एग्जैक्टली आएगा एग्जामिनेशन में, नेवर। आपको कैच क्या है कि आपको फॉर्मूला पे कमांड्स होनी चाहिए और उनके साथ यू आर स्मार्ट इनफ टू प्ले विद दोज फॉर्मूला। आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आप उन फॉर्मूला से प्ले करें। तो ये वीडियोस के सेशन हमारे एक ऐसे ही स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि मैम ये चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए कि हम विद इन टाइम फ्रेम में उस प्रेशर के टाइम में उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकें। सो आपने क्या करना है, फॉर्मूलेस पे अच्छे से कमांड करनी है, उन्हें जो है अच्छे से समझना है और उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 1000 क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो के कर लीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट वैसे के वैसे पढ़े रहें, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक। ठीक है, सो इन केस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, you have any inputs, do share, and we'll keep solving more numericals with all the subjects. So stay connected. See you in the next session. Till then, bye bye and Jai Hind.